اس کا ساؤنڈ سلو ہے. آپ سبھی خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ. ہاللویا ہاللویا. سب بولے ہاللویا. ابھی آپ کے پاس 2 منٹ ہے اور اس 2 منٹس میں آپ نے 3 لوگوں کے ساتھ ایسٹر وش کرنا ہے. عید مبارک کے طور سے آپ نے عید ملنی ہے. آمین. کسی کو عیدی ملی کہ سادہ ہی آپ ملے ایک دوسرے کو؟ عید ملی یا کسی کو نہیں ملی؟ لیکن ہم عید ضرور منائیں گے. ہاللویا. یسوع کے جلال سے زوردار تعریف چاہیے. ہاللویا. آئیے میرے ساتھ نکالیے ایک حوالہ. پالوس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور ہم دیکھیں گے اس کی 3 آیت. 15 باب اس کی 3 آیت. جب سب نکال لیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے. 3 اور 4 2 آیات پر آج ہم صبح خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اپنی نصیحت کے لیے. جو صفائی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو وہ سامنے آ جائے یہاں پر میرے ساتھ. آ جائے آپ آ جائیں. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 30 آیت. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور 30 کتاب مقدس کے جی اٹھا. خدا آپ بھی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. یہ تشریف رکھیے. جب ہم خاموشی اختیار کریں گے تب میں منادی کروں گا. آج ہماری عبادت کا جو مضمون ہے وہ ہے کتاب مقدس کے مطابق. آج ہمارا مضمون کیا ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق. کیا یہ مضمون آپ کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں تاکہ اسے یاد رہے؟ ایک دوسرے کو بتائیے کہ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کتاب مقدس کے مطابق. جو ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے حوالہ پڑھا ہے، یہاں پر خدا کا بندہ پاسٹر پول جو ہے وہ پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھتا ہے اور اس کلیسیا کو اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے، جو مر گئے تھے، جو مصلوب ہوئے تھے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصلوب ہوئے تھے اور وہ کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے 30ویں دن جی اٹھے ہیں. سب بولے ہاللویا. سب بولے ہاللویا. اس کلیسیا کو سمجھانے کے لیے پاسٹر پول کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے. اتنی محنت کرنی پڑی ہے کہ اس کو دوسرا خط بھی لکھنا پڑا اس کلیسیا کو بتانے کے لیے، اس بات پر زور دینے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح جو مصلوب ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے مصلوب ہوئے ہیں. وہ آپ کے لیے صلیب پر اس نے اپنی جان دی ہے. اس وجہ سے پالوس رسول کو دوسرا خط بھی لکھنا پڑا. چند لائنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. مسیحیت کی شروعات جو ہے وہ خالی قبر سے ہوئی ہے. مسیحیت کی
शुरुआत जो है वो खाली कब्र से हुई है, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। इंसानी तौर से, जिस्मानी तौर से कब्र के अंदर जब इंसान को रखा जाता है तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन मसीहों, आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। यह इंसान के लिए तो सब कुछ खत्म हो सकता है कब्र के अंदर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र के अंदर से आपके लिए एक नई गुड न्यूज लाते हैं। मसीहत की बुनियाद रखी जाती है और वो कब्र से रखी जाती है। हम सब के लिए कब्र आखिरी मकाम कहा जाता है कि ये आपका आखिरी घर है। कहा जाता कि नहीं? यह भी कहा जाता आपका आखिरी घर कब्रिस्तान है, और आप इसके लिए फंड भी देना भी चाहिए। लेकिन मसीही बहन भाइयों, मसीही मजहब के मुताबिक हमारा आखिरी मकाम या आखिरी घर कब्रिस्तान नहीं है। यह तब होता अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, इसलिए कब्रिस्तान जो है यह हमारा आखिरी घर नहीं है, बल्कि यह एक दरवाजा है। मौत एक दरवाजा है और इस दरवाजे के पार हमें जाना जरूर है। और दूसरी लाइन में आपके सामने रखना चाहता हूं, मौत मर गई। सब बोलिए, मौत मर गई, पर यीशु मसीह नहीं मरे। बल्कि क्या होता है, सलीब के ऊपर यीशु मसीह ने मौत को मारा है, मौत को शिकस्त दी है। और ये ऐलान हम आलानिया तौर से कर सकते हैं, जज्बे के साथ कर सकते हैं, कौमों में जाकर कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर मौत का खात्मा कर दिया है। हर शख्स मरता है, हर शख्स क्या होता है, हर शख्स मरता है, लेकिन हर किसी शख्स के बाद, हर किसी शख्स के पास मौत का तजर्बा नहीं है। कोई ऐसा शख्स है जो मरकर उठाए और आपको बताए? कोई ऐसा इंसान है जिसने मौत का तजर्बा किया हो? तजर्बा उसको कहा जाता है, कोई ऐसा काम जिसको आप करते हो, खुद करते हो, और फिर आप उस तजर्बे को शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं। हर इंसान मर जाता है, लेकिन उसके पास, किसी शख्स के पास भी मौत का तजर्बा नहीं है। तजर्बा है तो वो मेरे यीशु मसीह के पास है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी कब्र खाली है, जो आकर कहता है कि मैं मर गया था, दफन हुआ था, लेकिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा हो। यीशु मसीह के पास तजर्बा है, और वो कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि उससे हम सीख सकते हैं, क्योंकि उससे मरने का भी तजर्बा है, कब्र के अंदर जाने का भी तजर्बा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये मौजज़ा है या धोखा? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये एक मौजज़ा है या धोखा है? हकीकत यही है, ये मौजज़ा है, धोखा नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा किसी को भी धोखा नहीं देता, बल्कि वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है। उसने कहा दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और आज भी वो हमारे साथ है। ये धोखा नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है, ये एक मौजज़ा है, और इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं है। हालेलुया। लोग चर्चा करते हैं, लोग कहानियां बयान करते हैं,
कि ये एक धोखा है। क्योंकि फरीसियों ने भी यरूशलेम के अंदर ये धोखा साबित करने की कोशिश की कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे, बल्कि उसके शागिर्द आते हैं, उसके चेले आते हैं और वो यीशु मसीह को उसकी लाश को कब्र में से निकालकर ले जाते हैं। लेकिन ये धोखा नहीं है, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से हम नहीं भाग सकते। यीशु मसीह की मौत से आलम रवा के दरवाजे खुल गए। यीशु मसीह की मौत से क्या हुआ? आलम रवा के दरवाजे खुल गए। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने से आसमान के दरवाजे खुल गए। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के सबब से आसमान के दरवाजे खुल गए और अब आप आसमान के खुदा के सामने जाकर इल्तिजाएं कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया है। एक शख्स था, ये एक अमेरिकन अदाकार है, ये कॉमेडी करता है, ये लोगों को हंसाता है, ये एक बड़ा मशहूर एक्टर है जिसका नाम विलियम है। लेकिन अजीज बहन भाइयों, इसकी उम्र 65 साल है। यह शख्स लोगों को हंसाता है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, लेकिन 65 साल की उम्र में इस शख्स ने, इस माइकल ने, इस अदाकार ने खुदकुशी कर ली। इस शख्स ने क्या कर लिया? कितने साल की उम्र में? 65 साल की उम्र में इस शख्स ने खुदकुशी कर ली। वजह क्या? इसके दिल के अंदर चैन नहीं है, खुशी नहीं है। यह शख्स जो लोगों को खुशी देता है, लेकिन इसके जीवन के अंदर खुशी नहीं है। यह अंदर से नाउम्मीद हो चुका था, इसके तमाम सपने टूट चुके थे। ये लोगों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था, लोगों को खुशी देता था, लोगों को तसल्ली देता था, लेकिन खुद इसने खुदकुशी कर ली। वजह क्या थी? कि ये नाउम्मीद हो चुका है। आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि बाइबल बताती है और इस दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि जितने भी नबी पैगंबर आए हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, उनके तमाम के जो रूहानी लीडर है, जो नबी है, बाइबल बताती है, इस दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि वो तमाम मर गए और एक भी उनमें से जिंदा नहीं है। इसलिए वो नाउम्मीद है, इसलिए वो आंसू बहाते हैं, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो दुखी है। उनके पास कोई जिंदगी की आशा नहीं है। लेकिन मसीही लोगों, आपके पास आशा है, आपके पास जिंदा उम्मीद है, और वो जिंदा उम्मीद ये है कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुए हमारे गुनाहों के लिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज उसकी कब्र खाली है। ये उम्मीद है, यह मसीहों की उम्मीद है। मसीहों के पास उम्मीद है, मसीहों के पास शादमानी है, मसीहों के पास खुशी है, क्योंकि उनका मसीह खुदावंद यीशु अल मसीह जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। कोई शख्स आप में से सिर्फ एक लाइन आपने गानी है, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कौन गा सकता है? भाई साहब आप नहीं, आप गाते रहते, कोई नया बंदा उठे। और मैं ये चाहता हूं आपकी ये जो लाइन है, आपका ये गीत गाना जो है,
یہ नया सिर्फ गीत गाया जाना ना हो, इसके अंदर तेरी गवाही हो, इसके अंदर तेरी मोहब्बत नजर आनी चाहिए, इकरार हो हालेलुया कि यीशु मसीह जी उठा है। कोई है बहनों में से, भाइयों में से जो इस बात का ऐलान करे कि उसका मनन जी खुदावंद यीशु मसीह वो जिंदा है और आसमान पर है और फिर आएगा। वो सारे बेईमानी है गए, किसे को गीत नहीं आंदा। हालेलुया, मिलके गाएंगे। यस, हालेलुया। गाइए गाइए, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अजीज बहन भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि आपका मनन जी खुदावंद यीशु मसीह, उसके साथ क्या हुआ, उसको क्यों सलीब चढ़ाया गया, उसको क्यों मसलूब किया गया, उसकी रीजन एक ही है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा करता था, गरीबों के साथ खड़ा हो जाता था। अगर कोई मुर्दा है तो उसे जिंदा कर देता था, अगर कोई लंगड़ा है तो उसे चलाता था, अगर कोई अंधा है तो वो देखना शुरू कर देता था। और यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी जमातों में जाकर, 5-5 हजार की भीड़ में जाकर कलाम की मुनादी की, आसमान की मुनादी की, तौबा की मुनादी की। और याद रखिए, उस वक्त के जितने भी आम लोग थे वो तो यीशु से कलाम सुनना चाहते थे, वो तो यीशु से खाना खाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त के जो फकी फरीसी लोग थे उनको यीशु से प्रॉब्लम थी। लोगों को, चर्च को, कलीसिया को यीशु से कोई इश्यू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मसला था तो वो सिर्फ उस वक्त के पादरियों को मसला था, मसला था तो उस वक्त के फकी फरीसियों को मसला था। क्योंकि यीशु मसीह जो तालीम देते थे वो तालीम उनकी समझ से बाहर थी, और उन्होंने रटी हुई तालीम, वो शरीयत की जो तालीम थी, हाँ यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने आए, लेकिन यीशु मसीह फसल को साथ लेकर आए हैं। सिर्फ शरीयत को प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि खुदा का बेटा यीशु नासरी फसल के साथ आया है। उसने लोगों पर रहम किया है, उसने लोगों को तंदुरुस्त किया है, उसने लोगों को शिफा दी है। लेकिन ये बात उस वक्त के फकी फरीसियों को पसंद नहीं थी। यीशु मसीह कोई भी तालीम देते, कोई भी मौजज़ा करते, फकी फरीसी उठते और यीशु मसीह पर उंगली उठाते। लोगों को यीशु से कोई मसला नहीं था। मसला किन लोगों को था? फकी फरीसियों को। आज भी ऐसे लोग हमारी जिंदगी में, हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। वो आपकी तालीम से मुतफिक नहीं होते, वो आप जो चर्चा कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, वो आपके साथ एग्री नहीं होते। वो कहेंगे ये कोई नई तालीम है। याद रखिएगा, ये बाइबल मुकद्दस, ये जब आप पढ़ेंगे, ये आपकी सोच को नया कर देता है, ये आपके रवैया बदल देता है, आपके ख्यालात बदल देता है। और हमें एक वाकया मिलता है बाइबल मुकद्दस में, जब यीशु मसीह हैकल में आकर मनादी करने लगे तो यीशु ने कहा वो रिश्ता पूरा हुआ। तो वहां के जो लीडर थे उन्होंने कहा कैसे पूरा हुआ, हमें जवाब दिया जाए। और इस कदर वो शदीद गुस्से में आ गए कि उन्होंने यीशु को मार देने की कोशिश की, पहाड़ से गिरा देने की कोशिश की। और यही वजह बनी कि यीशु मसीह को साजिश की गई कि पकड़ लिया जाए। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, तो फिर वही एक भीड़ जो पाम संडे पर यह कह रही थी कि यीशु बादशाह है, अब वो गुड फ्राइडे के दिन ऐलान कर रही है, शोर मचा रही है कि इसको फांसी दी जाए। याद रखिएगा, पिलातुस वो यीशु को फांसी नहीं देना चाहता था,
वो नहीं चाहता था कि यीशु को सलीब दिया जाए, क्योंकि एक भी बात, एक भी ऐसा काम यीशु मसीह ने नहीं किया, या उसके ऊपर जो मुकदमा था वो जाहिर नहीं हुआ कि इसको सूली चढ़ा दिया जाए। वो उसको छोड़ देना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा, फरीसियों ने कहा, यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। और इतना हजूम का जोर और शोर के बादशाह को, पिलातुस को यह फैसला करना पड़ गया कि यीशु को क्या किया जाए, सलीब दी जाए। एक बात गौर से सुनिएगा इस बात को, ये जो हजूम था, ये जो पब्लिक थी उस वक्त, इसने कहा कि यीशु को सलीब दो। क्या कहा? लेकिन बादशाह सलीब नहीं देना चाह रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि इसका कत्ल जो है हमारी गर्दन और हमारी औलाद की गर्दन पर हो, लेकिन इसको सलीब दे। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि इस्राएल के जो हालात है, सब कौमों ने इस्राएल को झगड़ा हुआ है, इस्राएल पर चढ़ाई की हुई है, और ये चढ़ाई रहेगी, ये अटैक रहेंगे, क्योंकि वजह एक ही है कि उन्होंने मनंजी खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह इकरार नहीं दिया, उसको बादशाह नहीं माना, और लिखा है कि ये लानत का शिकार हुई है। लेकिन बाइबल बताती है कि एक वक्त आएगा कि ये लोग, ये इस्राएल के लोग, जब यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा के तौर पर, अपना बादशाह के तौर पर जब उसको कबूल करेंगे, तब ये लोग भी निजात पाएंगे। उस वक्त ये निजात पाएंगे। और याद रखिएगा, उससे पहले ये छूटने वाले नहीं है। कौमें इन पर चढ़ाई करेंगी, क्योंकि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया है। यीशु ने कहा, मैं अपनों के पास आया और अपनों ने, सब बोलिए, अपनों ने। आज यही हाल है कि जब खुदा के खादम आपके पास आते हैं और आप उन्हें कबूल नहीं करते, और ये जो इस वक्त एक लानत के शिकार बीमारी में मुंतला है इस्राएल, याद रखिएगा, ये उस वक्त तक ये सारी बीमारी, ये सारी लानत खत्म हो जाएगी जब वो यीशु मसीह के नाम का इकरार करेंगी, तब वो फतह पाएगी और पूरी दुनिया के ऊपर फतह पाएगी। और वो वक्त था कि उन्होंने कहा कि यीशु का जो कत्ल है, यीशु को जो सलीब चढ़ाना है, यीशु को जो मार देना है, इसका जो जुर्म है वो हम पर और हमारी औलाद पर आए। ये जुर्म की सजा पा रहे इस वक्त। अभी जो कुछ इस्राएल के साथ हो रहा है, यही वजह है कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को कबूल नहीं किया। और ऐलान होता है कि यीशु को सूली चढ़ा दिया जाए। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को सलीब देकर कलवरी के पहाड़ की तरफ लेकर जा रहे थे, और वहां पर उसको एक हम सफर मिला। आज यीशु किसी हम सफर की तलाश कर रहा है। सलीब यरूशलेम की वो गलियों में सलीब का एक भारी बोझ उठाए हुए खुदावंद यीशु मसीह अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, कलवरी के पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। और सलीब का इतना भारी वजन, और उससे पहले जुमे रात की रात को, और जुमे रात की रात और जुमे की सुबह तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत जुल्म किया गया, मारा गया। और फिर जुमे की सुबह 12 बजे से पहले यीशु मसीह को कुचला गया, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उसके सर के ऊपर रखा गया। और फिर यीशु मसीह कलवरी के पहाड़ की ओर जा रहे हैं, सलीब का भारी बोझ उठाए हुए, और वहां पर उसको एक हम सफर मिलता है जिसका नाम क्या था, जिसने यीशु की सलीब उठाई थी? कोई बता सकता है? शमौन कुरेनी। और याद रखिएगा, ये एक हफ्सी था,
ये एक हफ्सी था, और जब यीशु मसीह भारी सलीब का बोझ उठाए हुए चल रहे थे तो यीशु मसीह बार बार गिर रहे थे, और इस शख्स ने आकर यीशु मसीह को सहारा दिया, यीशु मसीह की सलीब को उठा लिया और यीशु मसीह को कोहे कलरी के पहाड़ तक लेकर गए। और बाइबल बताती है ये यीशु मसीह का सलीबी हम सफर है। आज खुदा का बेटा आप में से हम सफर ढूंढ रहा है तो यीशु मसीह के साथ मिलकर उस मिशन को पूरा कर सके। बादशाह खुदा जो है उसकी उस्सत के अंदर अपना हिस्सा डाल सके, और ये ऐसा शख्स है, शमौन शख्स जिसने सहारा दिया है। आज यीशु चाह रहा है कि कोई उठ खड़ा हो जो खिदमत के अंदर मेरा सहारा बने, जो चर्च के अंदर सहारा बन सके, जो कलीसिया के अंदर सहारे के तौर पर काम करे। यीशु को दाएं और बाएं दोनों तरफ के बाजू चाहिए, जो यीशु के साथ मिलकर चर्च में, कलीसिया में काम कर सके। और उसके बाद अब सबको मालूम है कि पहाड़ पर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटका दिया जाता है, और जब लटका दिया जाता है तो बाइबल बताती है कि 12 से लेकर 3 बजे के दरमियान पूरी कायनात में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। क्यों हुआ? जो मैंने सीखा है इसलिए हुआ ताकि खुदा का बेटा आपकी जिंदगी में रोशनी कर सके, आपकी जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला सके। याद रखिए, आज खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो रोशन हो जाए। उसने उस अंधेरे का खुद सामना किया, लेकिन वो आपको रोशनी में देखना चाहता है। वहां पर एक और यीशु मसीह को उसका हम सफर मिलता है जिसका नाम यूसुफ है। जिसका नाम, सब बोलिए, जिसका नाम, ये यूसुफ यीशु मसीह का बाप नहीं है। ये यूसुफ यहूदियों की जो काउंसिल थी उस काउंसिल का ये एक मेंबर है, यानी ये गवर्नमेंट का बंदा है, लेकिन पशीदा तौर से इसने यीशु मसीह को कबूल कर रखा था। ये यीशु मसीह का शागिर्द था और ये मालदार था। और उस वक्त यहूदी लोग जो बड़े मालदार होते थे वो अपनी कब्रें खुद बनवाते थे पहले से, और इसने भी एक पहले से कब्र अपने लिए बाग में बनवाई हुई थी। और याद रखिए, एक गवर्नमेंट का बंदा हो और गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले तो क्या उसको पकड़ने लिया जाता? पकड़ा जाता कि नहीं? गवर्नमेंट का बंदा गवर्नमेंट के खिलाफ जब बोलेगा उसको बोलते हैं बगावत। और आप गवर्नमेंट के अंदर रहकर आप गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन इसने हिम्मत की, इसने जुर्रत की, इसने अपना दिल बड़ा किया और सीधा पिलातुस के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं यीशु मसीह की लाश को क्या करूं? दफना सकूं। और पिलातुस ने इसे इजाजत दे दीजिए। अब इसकी अगली कहानी सुनिए। जब इसने यीशु मसीह को मसाले लगाकर कफन के साथ, कपड़े के साथ बिल्कुल कवर कर कब्र के अंदर रखा, तो याद रखिएगा वो सिर्फ यीशु मसीह उस कब्र के अंदर नहीं जा रहा था, बल्कि शमौन भी जा रहा था। शमौन भी उस हुकूमती निजाम को दफन कर रहा था, उस हुकूमती ओहदे को दफन कर रहा था, अपनी पोजीशन को दफन कर रहा था। ये शमौन वहां पर जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से तो नहीं, जिस्मानी तौर से उस इख्तियार को क्या कर रहा है? कब्र के अंदर दफन कर रहा है। और जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखकर आ जाता है
तो ये अब उस निजाम से, जो गवर्नमेंट का निजाम था, यहूदियों का निजाम था, उस निजाम से ये कब्र से बाहर जिंदा निकला है। ये अब रूहानी तौर से जिंदा हो गया है। अब इसने अलानी तौर से सामने आकर इस बात का ऐलान किया है कि मैं भी यीशु का शागिर्द हूं, मैं भी यीशु को मानने वाला हूं। पहले ये डरता था, आज भी बहुत सारे लोग डरते हैं। आज आप किसी न किसी निजाम के अंदर फंसे हुए हैं, कैद में है, लेकिन ये यूसुफ जो है ये रूहानी तौर से जिंदा हो गया। और आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर रूहानी तौर से जिंदा होने की जरूरत है। जिस तरह यूसुफ जिंदा हो गया, रूहानी तौर से जिंदा हो गया, उसने अपने गुनाह को छोड़ दिया, उसने अपने औहदे को छोड़ दिया, अपने इख्तियार को छोड़ दिया, और उसने आलानिया तौर से बादशाह के सामने जाकर कहा मुझे यीशु की लाश चाहिए। आज कितने लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि मैं यीशु का चर्चा करूंगा, मैं यीशु का गवाह बनूंगा। यूसुफ पिलातुस के सामने जाकर गवाही देता है, इकरार करता है कि मुझे यीशु की लाश चाहिए। आज कितने लोग हैं जो यीशु को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप यीशु को साथ लेकर जाएंगे तो हकीकत में ये इस यीशु मसीह का जी उठना आपके लिए फायदेमंद होगा, तब आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको याद है जब पिलातुस यीशु का फैसला सुना रहा था तो पिलातुस की बेगम एक ख्वाब देखती है। पिलातुस की बेगम ने क्या देखा? एक सपना देखा, और सपने में यह देखा कि जिससे तू हुक्म देने वाला है किसको सलीब चढ़ाया जाए, यह रास्तबाज है। तेरे दुश्मन तेरी गवाही देंगे कि तू रास्तबाज है। यहां पर एक खतून जिसने ख्वाब में यह देखा कि यीशु मसीह रास्तबाज है, और वो अपने शौहर को पिलातुस को आकर एक पैगाम भिजवाती है कि इसके हक में कोई भी ऐसी बात, ऐसा काम ना करना, क्योंकि ये शख्स क्या है? रास्तबाज है। एक ऐसी खतून जो बादशाह की मलका है, बादशाह की बेगम है। और मैं चाहूंगा कि जो यहां बादशाह बैठे हुए हैं वो भी अपने बेगम की बात को माने। यहां पे जो शौहर बैठे हुए हैं वो भी अपनी 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 बेगमात की बात को माने। यहां पर पिलातुस की बेगम ने कहा कि इसके हक में फैसला न देना। और क्या होता है? यीशु उस बात को सुनता है, समझता, पिलातुस इस बात को समझता है, और फिर वो मैंने जो पहले बताया था कि फकीह फरीसियों ने पब्लिक में कहा इसका कत्ल हमारे सर पर, तू बरी है। और वहां पर पिलातुस ने क्या किया? पानी मंगवा कर अपने हाथ धो लिए। दोस्त, चर्च, कलीसिया, सुन लीजिए, तेरे पानी से हाथ धोने से तू बेकसूरवार नहीं ठहरेगा। तेरे हाथों से यह लिखा गया है। बेशक तूने अपने हाथ धो लिए हैं, लेकिन तू बेकसूर नहीं ठहरेगा। तेरी हुकूमत में यह हुआ है और तेरे कहने पर हुआ है। और ये हरगिज ऐसा मत समझे कि उसने अपने हाथ धो लिए और मैं उस बेअहद यीशु के कत्ल से बच पाऊंगा। नहीं, बेशक आपने कुर्बानियां दी है, बेशक आपने हदिये नजराने दिए हैं, लेकिन जब तक तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा तो हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। एक बार नहीं, 1000 बार तू अपने हाथ धो ले, लेकिन ये तेरी कलम से लिखा गया है, ये तेरे कहने पर हुआ है कि तू बेकसूर नहीं है। हाथ क्या तू पूरा नहा ले, लेकिन तेरे कहने पर यह हुआ है। तो आज ये छोटे छोटे इंसान खुद ऐसे रास्ते बनाता है कि मैं बेकसूर ठहरूंगा। नहीं, रास्ता एक ही है और वो निजात का रास्ता है, और वो रास्ता यीशु मसीह है।
जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। और जब तक आप उस पर ईमान नहीं लाएंगे, आप कभी भी हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। मेरे अजीज बहन भाइयों, एक हवाला देखिएगा, सिर्फ सुनिए, बाद में देख लीजिएगा। मरकज 16 बाब उसकी पहली आयत, यहां पर हमें मिलता है, आज जिस तरह हमने सब्बत के दिन, एतवार के दिन सुबह सवेरे हमने जुलूस निकाला है, और यह जुलूस निकालने का मकसद एक ही है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। इसी तरह मरियम मगदलीनी जिसमें से 7 बदरूए निकाले, खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बदरूए निकाली, और चंद औरतें, बहनें ये अत्तर खुशबूदार चीजें लेकर, फ्री में नहीं, किसी से मांग कर नहीं, बल्कि बाइबल बताती है मोल खरीद कर। आज आपको भी खुदा के हुजूर जब आप आते हैं तो कीमती चीजें खुदा के पास लाए, और सबसे कीमती चीज मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। सबसे कीमती चीज आपका दिल है। इस दिल में खुदा फिर से जी उठना चाहता है। आपका दिल खुदा मांगता है, आपके दिल में रहना चाहता है। और ये चंद औरतें, मरियम मगदलीनी खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर आ रही है, और ये यीशु की लाश पर लगाने के लिए आ रही है। इनका ये ईमान नहीं है कि यीशु मसीह हम जाएंगे कि आगे से पत्थर हटा होगा और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाएगा। नहीं, ये किस ज़हन से जा रहे हैं कि हम मसाला लेकर जा रहे हैं, खुशबूदार चीजें लेकर जा रहे हैं और यीशु की कब्र पर लगाए। ये अकीदत है, ये मरियम मगदलीनी की और इन बेटियों की, बहनों की एक यीशु मसीह के साथ अलग सी मोहब्बत है। और ये ऐसी मोहब्बत है कि इस मोहब्बत से यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो महरूम है। ऐसी लगन, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा जज्बा भाइयों के अंदर नहीं है, बहनों के अंदर पाया जाता है। और ये बहनें जब वहां पे पहुंचती हैं और रास्ते में क्या बातें करती जा रही है कि आज सुबह मैं टिकटॉक बनाऊंगी, आज सुबह सवेरे आज मैं यहां जाऊंगी, वहां जाऊंगा। नो, ये कौन सी बातें कर रही है? यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। चर्च कलीसिया, आप जब यीशु का जिक्र करेंगे, जब आप यीशु की बात करेंगे, जब आप यीशु के गीत गाएंगे, जब आपके होठों पर यीशु का तराना होगा, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके सामने जीरो होगी, हट जाएगी। और इनके साथ ऐसा ही हुआ। ये यीशु की बातें करती हुई जा रही है कि हम यीशु की कब्र पर खुशबूदार चीजें लगाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कि आगे एक बड़ा सरप्राइज है इनके लिए, एक बड़ा गिफ्ट होगा। और वो गिफ्ट क्या है कि जब ये पहुंचती है तो आगे कब्र के मुंह के ऊपर जो एक भारी पत्थर रखा हुआ था, वो सिरका हुआ था, हटा हुआ था, और यीशु कब्र के अंदर नहीं था। और जब इन्होंने जाकर देखा तो ये एक इनकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा मौजज़ा था, और इन्होंने वही कीमती चीजें फेंक दी और जाकर बिशारत दी। और कहां बिशारत दी? रसूलों के पास गए, शागिर्दों के पास गए कि आओ देखो यीशु की कब्र खाली है। और लेकिन मरियम मगदलीनी वहां पर खड़ी रही, और एक फरिश्ते ने आकर उससे कहा, किसे ढूंढती हो? उसने कहा, मैं यीशु को ढूंढती हूं। आज ये सवाल आपके लिए है। आप अगर चर्च में आते हैं तो किसको ढूंढते हो? आप पास्टर यारद के लिए आते हैं, पास्टर तारिक के लिए, बिशप साहब के लिए, किसके लिए? आप यीशु को लिए आए। आप यीशु को ढूंढे। जब आप यीशु को ढूंढेंगे तो याद रखिएगा, यीशु आपकी जिंदगी में मौजज़े करता है। यीशु आपकी जिंदगी में जी उठेगा।
और आपके लिए गवाही होगी। और यीशु ने जिंदा होकर इनको सबसे बड़ा सरप्राइज ये दिया कि वो अपने किताबे मुकद्दस के मुताबिक जो उसने फरमाया था उसके मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा है। आज ये गवाही है। आज ये गवाही है और ये गवाही औरतों को दी गई और औरतों को जिम्मेदार जानकर दी गई। बहनों, बेटियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप संडे सर्विस में भी आए तो इसी जज्बे के साथ आए कि आप यीशु को मिलने जा रहे हैं, आप यीशु से बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ खुशबूदार चीजें लगाना चाहते थे, लेकिन यीशु ने इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा मौजज़ा किया और इन्होंने जाकर क्या किया? जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ था, लेकिन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा है। और ये बात आज आपको भी हर जगह पर जाकर बतानी है, सुनानी है, लोगों को चर्चा देना है, ये पैगाम देना है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक ये भी बताएं कि वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ है। आयत का एक हिस्सा नहीं बताना कि किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा है, बल्कि क्या बताना है? वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए क्या हुआ? मुआ, मर गया, मसलूब हुआ और फिर किताब मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम सबको अपने दिलों को पाक करना है। आज हमें अपने आप को पाक करना है। आज हमें अपनी जिंदगी को सही सिमत में लेकर आना है, ताकि खुदा जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी दे। आपने बहुत सारे जनाजे देखे होंगे, आखिरी बात, आपने बहुत सारे जनाजे देखे होंगे, इंसानों के जनाजे देखे होंगे। आपने देखे कि नहीं? बल्कि जनाजों के साथ भी गए होंगे। हमने जनाजे पढ़े भी हैं, लेकिन वो आपने इंसानों के जनाजे देखे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मौत का और कब्र का जनाजा ही निकाल दिया। तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठकर उसने मौत का जनाजा निकाला, उसने कब्र का जनाजा निकाल दिया। और आज खुदा का बेटा तेरे गमों का जनाजा निकालना चाहता है, तेरे कर्जों का जनाजा निकालना चाहता है, तेरी बीमारियों का जनाजा निकालना चाहता है। आज तुझे हर तरह से आजाद करना चाहता है, आजाद करना चाहता है, बरकत देना चाहता है। ये औरतें इस नीयत से नहीं आ रही थी कि हम चर्च में जाएंगे, यीशु से शिफा लेंगे, शिफा के लिए बरकत की दुआ करेंगे। नहीं, ये सिर्फ यीशु की कब्र को देखना चाहते थे, खुशबूदार चीजें लगाना चाहते थे। आज हम तो सिर्फ अपनी डिमांड रखते हैं, अपने लिए हम आते हैं, हम अपने मसाइल खुदा के हुजूर लाते हैं। ये मसाइलों के साथ नहीं आई, ये बीमारियों के साथ नहीं आई, ये तकलीफों के साथ नहीं आई। ये औरतें दिल से आ रही है, अकीदत, उसकी मोहब्बत में, उसकी इज्जत में। जब आप यीशु की इज्जत में आएंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आएंगे, तो यीशु मसीह बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ी बीमारी, तकलीफ, मुश्किलातें तेरी जिंदगी से हटा देगा। और ये तब होगा जब तू दिल से आएगा, जब तू दिल से आएगा। आज खुदा तेरी सारी बीमारियों के जनाजे जो है ने खत्म करना चाहता है। आज खुदा तुझे आजाद करना चाहता है, तुझे बढ़ाना चाहता है, जिंदगी देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सभी सर खुदा की हुजूरी में झुके। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि अगर जमात में से किसी ने अपने दिल को खोला है कि खुदा का बेटा यीशु नासरी जो किताब मुकद्दस के मुताबिक बेटियों, बेटों, भाइयों, आपके गुनाहों के वास्ते मुआ, मसलूब हुआ और वो फिर किताब मुकद्दस के मुताबिक
जी उठे यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा मानना चाहते हैं, बादशाह के तौर पर उसे कबूल करना चाहते हैं, तो आप अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आप ऐसे कोई चाहता है कि उसके लिए कोई दुआ की जाए, तो वो भी अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। जो अपनी खताओं के लिए, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं, अपने खताओं का इकरार करना चाहते हैं, आज सुन आपके लिए मौका है। खुदा का बेटा आपके लिए हुआ है और आपके लिए वो मुर्दों में से जी उठा है, ताकि आपको शिफा दे, आपको जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे। अगर जमात में से ऊपर से भी कोई उठना चाहता है, कोई कैंडल निर्माण है, तो उसके लिए दुआ की जाए, तो वो ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम यीशु के नाम से दुआ करेंगे जो दुनिया का निजात दहिंदा है। आज यूसुफ की तरह हमें भी उस निजाम को दफन कर देना है, उस सिस्टम को दफन कर देना है, और यूसुफ की तरह रूहानी तौर से यीशु मसीह का ऐलान करना है, उसका शागिर्द बनना है, और बड़े से बड़े बादशाह के सामने जाकर इजहार करना है, यीशु की गवाही देनी है और यीशु को साथ लेकर जाइए। यीशु मुर्दों में से इसलिए जी उठा ताकि आपके पास जिंदा उम्मीद हो, ताकि आप भी अपने ठहरे वक्त पर मुर्दों में से जी उठे और हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जितने बहन भाई खड़े हुए हैं वो तमाम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारे के वास्ते मुआ किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमें जिंदा यीशु के पुजारी हैं, हम जिंदा यीशु की इबादत करते हैं। हम जिंदा यीशु के नाम से इन तमाम बेटियों के लिए, इन भाइयों के लिए, बेटों के लिए दुआ करते खुदावंद इनके दिल तब्दील हो जाए, इनकी जिंदगी तब्दील हो जाए, इनके खानदानों के अंदर तेरी बरकत आए। अगर ये किसी मुश्किलात में है, बीमारी में है, कर्ज में है, तो इन तमाम मुश्किलातों का खुदावंद तेरे पास हल है, और तू डाल इनकी बीमारियों को छिड़क, जिस तरह तूने कब्र के ऊपर, मौत के ऊपर, शैतान के ऊपर फतह पाई है यीशु मसीह, इनकी सारी मुश्किलातों के ऊपर भी फतह पा और इनको आजाद कर दे, इनको बहाल कर दे और इनको जिंदा कर। खुदावंद इनको बरकत दे, ये शिफा पा जाए, इनकी मुश्किलातें दूर हो। खुदावंद अगर जमात में से जिसने भी तुझे आलानिया तौर से अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है, ऐ खुदावंद उसकी कबूलियत को अपने हुजूर मकबूल ठहरा और उसे हमेशा की जिंदगी दे। ऐ खुदावंद तू इस सारी जमात को बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। सभी बैठिए, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।